دین میں سب سے اہم چیز ہے، ہم نے کئی بار بتایا ہے، سب سے پہلے عقیدہ، آدمی کی سوچ سمجھ اور نظریات، وچار اور خیال درست ہونا چاہیے، ورنہ بہت مرتبہ بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، ہوتی غلط ہے وہ لیکن دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عالم اور علماء کو گہرا علم دیا ہے اور غور فکر کرنے کی صلاحیت اور قابلیت دی ہے، وہ جس چیز کو بہت سے لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر جو خرابی ہے، جو قباحت ہے، جو تباہی اور بربادی ابھی یا آگے چل کے ہو سکتی ہے، اس کو عالم علماء اپنے علم میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، اس کی بنیاد پہ وہ اس کی خرابی اور قباحت کو اور برائی کو پہچان لیتے ہیں کہ دیکھنے میں بھلے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ اسی طرح کی ایک چیز ہے، ایک بار اور اس پہ ہم بیان کیے تھے، تھوڑا سا آج روشنی تھوڑا سا اور ڈال دیں، ہو سکتا ہے 10-5 منٹ وقت زیادہ ہی ہو جائے، لیکن بڑی اہم چیز ہے، آپ غور کریں اس پہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو بات کہہ لیں بس ہماری بات آپ مان لیں، ہاں قرآن حدیث سے کوئی بات بتائیں تو اس میں بھائی کوئی بات نہیں رہتی، وہ تو ایسا رہتا ہے کہ بھائی اس کو ہر ایک مسلمان کو ماننا ہے، لیکن کچھ باتیں اگر جیسے ہم اپنے غور فکر کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو بس مان لو، آپ اندھے بھکت نہ بنو کسی کے، بلکہ خود بھی غور کرو ہماری باتوں پہ۔ اگر ہم کوئی اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پہ کوئی بات اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں خود غور کرو، پھر خود اپنے دماغ سے فیصلہ کرو کہ ہماری بات کہاں تک صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ساری بات ہماری قبول کر لیں اور مان لیں کہ ہاں ثاقب نے صحیح کہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 4 سے آپ نا اتفاقی کریں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، 6 بات ان کی ماننے کے قابل ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک میں اس کو فتنہ کہوں گا، فتنہ مطلب آزمائش، تباہی اور بربادی کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے کا نام ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شاہین گروپ اکیڈمی، ایک بار اور ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ شاہین گروپ ہے کیا؟ پہلے تھوڑا سا آج ہم پورا سرچ کر کے دیکھ کے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہم پیش کر دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ان سے نقصان کیا ہو سکتا ہے مدرسے والوں کا اور دین کا، وہ بھی اس کے بعد ہم پیش کریں گے۔ شاہین گروپ ایک تعلیمی گروپ ہے جس کی شروعات ضلع بیدر کرناٹک سے ہوئی۔ اس وقت اس کی ملک میں یعنی دیش میں بہت سے برانچ اور شاخیں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد مسلمانوں کو عصری علوم اور دینی علوم، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ عصری علوم کا مطلب آج کے وقت میں جو دنیاوی علم ہے، جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، کمپیوٹر ہے، یا اے آئی آج کل آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں عصری علوم یعنی جو زمانے کے علوم ہیں، دنیاوی علوم، ان کو عصری علوم کہا جاتا ہے۔ تو اس گروپ کا مقصد ہے مسلمانوں کو عصری علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھانا، مسلمان بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا، جو بہت اچھا مقصد ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اچھی چیز ہے، جو کہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ یقیناً آج ہمیں جیسے عالم، مفتی اور حافظ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے آج ہماری قوم کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS، PCS اور جو دنیاوی علوم میں کے ماہرین، ان کی بھی ضرورت ہے ضرورت۔ اگر وہ نہیں ہے ہماری قوم کے اندر تو اس سے بھی بہت جگہ پریشانی اور دقت ہوتی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے۔ یہ جو شاہین گروپ والے ہیں، یہ ان کے بہت سے ادارے چلتے ہیں، بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اب کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، یعنی ایک الگ سے ایک ساکھ بنایا ہے، ایک الگ طرز سے تعلیم، اس کو کہا جاتا ہے حفظ پلس اکیڈمی۔ حفظ پلس اکیڈمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو بچے حافظ بن چکے ہیں، پڑھ لکھ کے مدرسے میں حافظ، ان کے استاد نے محنت کر کے رات دن ایک کر کے
और मदरसे में कितनी मेहनत होती है, आप थोड़ा सा भी हम इस पर रोशनी डालेंगे। उनको हाफिज बना दिया, बन गए हाफिज अल्लाह के फजलो करम से। ऐसे बच्चों का दाखिला जो शाहीन ग्रुप वालों ने हिफ्ज प्लस एकेडमी शुरू किया है कि हिफ्ज प्लस और क्या क्या पढ़ना है, प्लस मतलब होता है उसमें और क्या क्या जोड़ना। तो ये प्रोग्राम खास तौर पर मदरसे के उन तलबा के लिए बनाया गया है जो हिफ्ज मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें सिर्फ हाफिज कुरान तलबा का दाखिला होता है, इस वाली ब्रांच में, इस वाले शोबे में, इस डिपार्टमेंट में जो हिफ्ज प्लस एकेडमी है। इन तलबा को साइंस, मैथ और अंग्रेजी की तालीम देकर, यानी जो हाफिज बच्चे थे उनका दाखिला लेते हैं, देकर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के इम्तिहानात, डॉक्टरी के जो इम्तिहान नीट का एग्जाम होता है, उसमें जब कामयाब हो जाए तो फिर किसी डॉक्टरी कॉलेज में दाखिला होता है, फिर पढ़ते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं, तो उस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इंजीनियरिंग के जो कंपटीशन का एग्जाम है उसकी तैयारी कराते हैं। इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त 10,000 से ज्यादा तलबा, यानी जो हाफिज बन के मदरसे से निकले हैं, इस प्रोग्राम के तहत तालीम पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे, हाँ हाई स्कूल तो हम मानते हैं सारे कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते होंगे। बहुत से उसमें कामयाब होते होंगे। जैसे मदरसे में ही जितने बच्चे आते हैं सारे कामयाब नहीं हो जाते, बहुत से कामयाब होते हैं, बहुत से बीच में इधर उधर हो जाते हैं। अब ये प्रोग्राम ही चला रहे हैं। इसका नुकसान क्या है, इस पे गौर अगर किया जाए तो इसके बहुत से नुकसान और खतरात हैं, अभी भी हैं और आइंदा चल के होंगे। खास तौर से मैं एक बात बताऊं, पहले लोग ये कहते थे कि माँ बाप जो है बच्चों के बदन की परवरिश करते हैं, उन्हीं के माँ बाप जो कमा कर खिलाते पिलाते हैं उससे बच्चे का बदन बढ़ता है, और उस्ताद जो है बच्चों के रूह की परवरिश करते हैं। इसी तरह जो हमारे बदन के अंदर एक रूह है, रूह की ग़िज़ा खाना नहीं है, रूह की ग़िज़ा इल्म है। रूह की ग़िज़ा, रूह जिसके जरिए से परवास करती है और परवान चढ़ती है, अल्लाह के करीब होती है, तो उस्ताद इल्म देता है। लेकिन ये कहा जाता था पहले, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि जिस तर्ज पर मदरसे चल रहे हैं, जो माँ बाप का काम है, सिर्फ बाप नहीं, माँ और बाप, और जो उस्ताद का काम था इल्म देना और माँ बाप का काम था बदन की परवरिश करना, ये दोनों काम उस्ताद और मदरसे वाले कर रहे हैं। ये दोनों काम मदरसे वाले कर रहे हैं। मदरसे में जिस तरह माँ बाप बच्चों की देखभाल, खाना पीना, उठाना जगाना, सारी चीज वो हम कर रहे हैं यहाँ रात दिन मदरसे के अंदर, यानी चंदा करना और फिर उसके बाद खाना पीना सारा इंतजाम करना, जो माँ बाप करते थे वो काम भी हम मदरसे वाले कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जो उस्ताद का काम था वो तो कर ही रहे, वो सारी चीज हम कर रहे हैं। तो किस कदर हम आप जो है कुर्बानी देकर और किस जज्बे के साथ किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं, या जो उस्ताद उनको पढ़ा रहा है, अगरचे दूसरा उस्ताद पढ़ाया हो, हम ना पढ़ाए हों, लेकिन उनकी तनख्वाह का इंतजाम करना, उसकी फिक्र करना, उसके लिए चंदा करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, वो सारी चीज हम या जो भी मदरसा, जो तमाम और मदरसा चलाने वाले चला रहे हैं वही करते हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारा जज्बा क्या है, हम इस जज्बे से पढ़ाते हैं कि ये पढ़ लिख कर सिर्फ हाफिज नहीं बल्कि ये आलिम और मुफ्ती बने और दीन के एक मजबूत सिपाही बने। और सिर्फ हाफिज बनकर वो इधर उधर चले जाएं, ये हम नहीं चाहते। क्योंकि कोई अगर माने चाहे ना माने, हाँ हम मानते हैं कि हाफिज की बहुत फजीलत है, हाफिज 10 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा, ठीक अच्छी बात है, लेकिन हाफिज इल्म के एतबार से बिल्कुल जाहिल है, उसको कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ कुरान उसको मुजबानी याद है बस, बकिया उसको मसला मसाइल या कोई गहराई या अकीदे की पुख्तगी, अकीदे का जमाव, जो एक ईमान और एक मजबूती चाहिए अकीदे की, हाफिज के अंदर वो कोई चीज ऐसी चीज नहीं होती। वो कब किधर फिसल जाए, कब उसको किधर कोई गुमराह कर ले जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो हाफिज कुरान याद है, हाँ फजीलत है, मानते हैं, लेकिन हाफिज और एक आम आदमी जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, इल्म के एतबार से और तमाम मसला मसाइल दुनिया भर की जो चीजें हैं उसके एतबार से देखा जाए करीब करीब बराबर होते हैं। मदरसे के अंदर हमने इससे भी पहले कहा था कि मदरसे में, तो वक्त ज्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह जो बात रह जाएगी फिर अगले जुम्मा को बताएंगे, थोड़ा सा और सुन लीजिए बस। मदरसे में हमारा अपना अंदाजा एक है कि 100 में से मुसलमानों के 5 बच्चे मदरसे में आते हैं। उन 5 में से जो 5 मदरसे में आए हैं उनमें से शायद एक ही बच्चा हिफ्ज तक पहुंचता हो,
बस ये या तो नाजरा पढ़ के इधर उधर चले जाएंगे, कहीं और अपना पढ़ेंगे या जो कुछ भी करें, और कुछ ऐसे होंगे जो 4 पारा 8 पारा 10 पारा पढ़ के इधर उधर हो जाते हैं। 5 जो अगर आए हैं 100 में से 95 तो इधर उधर स्कूल कॉलेज दुनिया भर के जा रहे हैं या कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे। 5 जो आए हैं मदरसे में 100 में ना, उसमें से एक ही शायद हिफ्ज तक पहुंचे। तो पहले क्या था, पहले हम मदरसे वाले या आलिम उलमा ये रोते थे कि लोग जो है मदरसे में नहीं भेजते, लोग अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहे, दुनियावी तालीम मदरसे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, उससे बड़ी खतरनाक चीज है ये कि जो बच्चे इत्तेफाक से किसी भी वजह से उनके माँ बाप के दिल में अगरचे आज दुनिया परस्ती, मादा तलबी और तमाम चीज का, दौलत का नशा हर आदमी के ऊपर चढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे माँ बाप अल्लाह ताला ने दिए हैं और उनके सीनों में अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा दिल रखा है, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इस लाइन में बहुत पैसा नहीं है। अगर हम इस लाइन में अपने बच्चों को भेजेंगे, उसकी जिंदगी भी शायद मुश्किल से गुजरे, मशक्कत के साथ गुजरे, और हमको भी बहुत कमा के ये नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस लाइन में बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। तो पहले तो हम ये रोते थे कि लोग अपने बच्चों को मदरसे में कम भेज रहे हैं कि दीन के आलिम मुफ्ती बन के कुछ तैयार हो, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब क्या है कि जो मदरसे में आए और हमने खून पसीना बहाकर नाजरा मुकम्मल किए, एक सीढ़ी चढ़े, हिफ्ज मुकम्मल किए, दूसरी सीढ़ी पहुंचे। अब उन बच्चों को ये शाहीन ग्रुप वाले, ये जो दुनियावी तालीम की लालच दे रहे हैं, हम कहते हैं ये शैतान से कम नहीं है। शैतान हमें और आपको हाथ पकड़ के जबरदस्ती कोई गलत काम नहीं करवाता, वो भी यही करता है कि हाँ, दुनिया की और तमाम चीज की लालच हमारे दिलों में डालता है, इसी तरह तो बहकाता है। अगर यही काम शैतान वाला, कोई कह सकता है का वो जबरदस्ती ले जाता है, जब माई बाप अपन हम भी, शैतान भी तो यही करता है, का वो जबरदस्ती हमारे तो पकड़ के हाथ पकड़ के गुनाह करवाता है या गलत राह पे ले जाता है, गुमराह करता है। वो भी इसी तरीके से गुमराह करता है कि दुनिया की जो रंगीनी है, दुनिया की तमाम चीजें हैं, उसकी लालच हमारे दिलों में डालता है। और वो क्या कहते हैं, हमें इस तरफ, अब जो बच्चा जो हाफिज बना है, जिसको जो दीन का एक आलिम और मुफ्ती बनना चाहिए था, अब वो जो है इंजीनियर और डॉक्टर बनने जा रहा है। लेकिन अगर सोचो, क्या कोई इसकी गारंटी ले सकता है कि जितने बच्चे इसमें दाखिला लेंगे सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे? कोई इसकी गारंटी नहीं है। हम कहते हैं बन जाएं, सब बन जाते हों, तब भी जो हाफिज आलिम जो बच्चा बना है उसको उधर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब 5% बच्चे आ रहे हैं मुसलमानों के मदरसे में और उसमें से 1% जो है एक हाफिज बन रहा है, तो अगर ये जो अच्छे जो हाफिज बन रहे हैं, अगर इनमें से बहुत से अगर हमारे बच्चे, हम मदरसे वालों के बच्चे वो दुनियावी उलूम की तरफ चले जाएंगे, तो इन मदरसों मस्जिद का और इस दीन का क्या हाल होगा, आप सोच लो। जो अच्छी सलाहियत के लोग हैं वो सब चले जाएंगे, तो यहां बचेंगे कौन लोग? आज इसी वजह से अक्सर देख लो मस्जिदों के अंदर कोई ढंग का मतलब आलिम मुफ्ती इमाम बहुत कम पाओगे। सबसे बड़ी चीज तो आवाम की जो है खराबी है, लोग तनख्वाह सही से नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से कोई भी अच्छा आलिम मुफ्ती जो है किसी मस्जिद में इमामत करना जल्दी नहीं चाहेगा। इस लाइन में परेशानी है, यकीनन है, कुर्बानी है, जद्दोजहद है, मुजाहिदा है, सब कुछ है, इससे इनकार नहीं है। तो अब ये लोग हमारे मदरसे के बच्चों को ये लोग उचक ले जा रहे हैं। और ये ऐसे ही है जैसे फसल हमने बोई थी, फिर उसको परवान हमने चढ़ाया, और जब वो कुछ लायक के बन गए तो कोई दूसरा फसल काट ले जाए। अगर उनको वाकई मुसलमान कौम की हर हमदर्दी है इन लोगों के अंदर, तो फिर इनको ये चाहिए कि बहुत से मुसलमान, हम कहते हैं 5% मदरसे में आ रहे हैं, 95% जो इधर उधर जाके बर्बाद हो रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनमें भी अक्सर बच्चे जो है कितना क्या बन जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, क्या बन जा रहे हैं, अक्सर बर्बाद हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे होंगे, कितना ऐसा पिछड़ा इलाका होगा जहां स्कूल भी नहीं होगा, मदरसा भी नहीं होगा। इनको चाहिए कि जाएं, कौम के उन बच्चों को अपने साथ लें, इनको पढ़ाएं, इनको इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं। या अगर इनका दिमाग ये है कि नहीं, जो हाफिज बच्चा है हम उसी को इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, तो इनको फिर एक काम दूसरा करना चाहिए, इनको मदरसे कायम करना चाहिए। खुद अपना मदरसा हर जगह अपनी, जैसे इंजीनियर डॉक्टरी कॉलेज चला रहे ना, उसी तरह मदरसा कायम करें, अपनी ब्रांच कायम करें उसमें, और ऐसे इलाकों में कायम करें जहां पर दीन के मदरसों की जरूरत है। ऐसे बच्चों को
खुद हाफिज बनाए, फिर ले जाओ इंजीनियर डॉक्टर बनाओ अपना। और शुरू से बता दो उनके माँ बाप से कि हम इनको जो है हाफिज बना रहे हैं और ये सब बना रहे हैं, आप ये ना समझना कि इनको हम आलिम मुफ्ती बनाएंगे, हम इनको उसके बाद इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तरफ ले जाएंगे। उनके माँ बाप से पहले बताए रहो, माँ बाप आप इस नाम पे आपके हवाले करें, फिर उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे जिनके माँ बाप ने शुरू में इस जज्बे के साथ उन बच्चों को भेजा था कि ये दीन के सिपाही बनेंगे, तुम बाद में वो डाका डाल के चोरी करके और सैतनत करके उनको उचक लो, शिकार कर लो, इसके ये बिल्कुल तबाही और बर्बादी की चीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ें, लेकिन जरूरत भर को इतना पढ़ लें कि कहीं किसी के मोहताज न रहें, कहीं जाएं तो हम भी इसके कायल हैं। इतना पढ़ना चाहिए मदरसे वालों को भी, इतना पढ़ना चाहिए हिंदी इंग्लिश मैथ, जरूरत भर का अपन जाने चाहिए, ताकि कहूं हर जगह कहूं कुछ काम पड़े, कहूं के मोहताज ना रहा। लेकिन अगर ज्यादा पढ़ लिए आगे चल के इधर उधर चले जाएंगे। एक मिसाल दे रहे हैं, हमारे यहां जो है खास तौर से दो मतलब एक तर्ज चलता है। एक दारुल उलूम देवबंद का तर्ज है, दारुल उलूम देवबंद है, और उसके तर्ज पर चलने वाले बहुत से मदरसे हैं, करोड़ों लाखों मदरसे होंगे हिंदुस्तान के अंदर जो दारुल उलूम देवबंद और उसके तर्ज पर चलते हैं। और एक और भी मदरसा है नदवतुल उलमा, लखनऊ के अंदर है, नदवा है, वो भी मदरसा है। लेकिन नदवे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी काफी हद तक इंग्लिश तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसका नतीजा आप देख लो आंख खोलकर, आप दीन के लिए जूझते हुए, दीन का काम करते हुए, और मदरसा और मस्जिद में इमामत ये सब जो दुनिया भर का अक्सर चीजें ज्यादा तक तुम दारुल उलूम देवबंद और उसके तर्ज पर जो चलने वाले मदरसे हैं वहां से पढ़े हुए लोगों को पाओगे, नदवे वालों को कम पाओगे। तुम इस तरह मेहनत करते हुए दीन के लिए नदवे वालों को कम पाओगे, क्योंकि वहां दुनियावी उलूम भी काफी हद तक दे दिया जाता है। तो बहुत से उनके बच्चे जो है दीन के बजाय दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। दीन के लिए तड़प और जज्बा और दीन के लिए कुछ कर गुजरने का वो जज्बा उनके अंदर नहीं होता जो दारुल उलूम देवबंद और उसके तर्ज पर चलने वाले मदरसों के अंदर होता है। अगर ज्यादा पढ़ा दिया जाए तब भी ये इधर उधर चले जाएंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे, उनके वक्त में कोई उनसे बड़ा मुफक्किर नहीं माना जाता। कहा कि उनके वक्त में बहुत से लोग बात कर रहे थे इस तरह की मदरसे वालों को जो है इंग्लिश और बहुत कुछ पढ़ाया जाए, लेकिन आज जरूरत महसूस हो रही है, आलिम उलमा इसके कायल हैं कि हाँ जरूरत भर को पढ़ा दिया जाए, मोहताज न रहे किसी के इस चीज में। देखो कोई आदमी दोनों चीज में माहिर बने ये बहुत मुश्किल काम है कि दुनिया में बहुत माहिर बन जाए और दीनी उलूम में भी। हमारी राय यह है एक में माहिर बने, दूसरे में जरूरत भर का जानता रहे। दीन में अगर माहिर है तो दुनिया की चीज जरूरत भर का जानता रहे, अगर दुनिया का बहुत बड़ा माहिर है तो उसके लिए भी इसी तरह जरूरी है तो दीन की जरूरत भर की चीज जानता हो। दोनों में माहिर कोई बने ये बहुत मुश्किल काम है, शायद कोई बन जाए। हमारी तो राय तो ये है, हम ये नहीं कहते कि मदरसे के बच्चों को हिंदी इंग्लिश मैथ नहीं आना चाहिए, जरूरत भर को आना चाहिए, इसकी भी जरूरत है। लेकिन अगर ज्यादा बहुत पढ़ा दिया जाए और इनको एकदम अपडेट कर दिया जाए और दुनियावी उलूम बहुत ज्यादा दाखिल कर दिया जाए मदरसों के अंदर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने अपने वक्त में ऐसे लोगों को आगाह किया था, कहा इन मदरसों को इन्हीं हालत पे रहने दो, ये टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले अगर ये दुर्वेश नहीं रहे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो अंदलुस के मुसलमानों का हुआ है कि जहां 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन जब दीनी उलूम से बेरगबती पैदा हुई, दीनी उलूम से मुसलमान दूर हुए, अय्याशी और दुनिया परस्ती में मुब्तला हुए, तो एक वक्त ऐसा आया कि दूसरी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया, तबाह हुए मुसलमान, कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं रहा। वही हाल तुम्हारा होगा की गई तो इनको इसी हालत में रहने दो, इसी हालत पर रहने दो, बहुत ज्यादा इनको अपडेट करने चक्कर में न पड़ो। क्योंकि आज जो दौर है, जो आलिम उलमा 10,000 15,000 पे कोई इमामत कर रहा है, कोई मदरसे में पढ़ा रहा है, अगर आप बताओ दुनिया की जरूरत किसको नहीं है, हर शख्स को है। अगर इनके पास बहुत ऑप्शन पैदा हो जाए कि हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कोई और काम करके हम बहुत बड़े बन सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि वो इस लाइन में कायम रहे, बहुत मुश्किल चीज है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम आलिम उलमा को कि अल्लाह ताला ने हम आलिम उलमा को ऐसा बनाया है कि अगर हम दूसरी लाइन की तरफ जाना चाहें तब भी न जा सकें, झक मार कर
اس دین کا تم کام کرو گے، تمہارے پاس آپشن نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اگر آپشن ہوتا تو 10,000 پہ تم امامت نہیں کرو گے، 12,000 پہ مدرسے نہیں پڑھاؤ گے، بھاگ جاؤ گے کہیں اور جا کے دنیا کماؤ گے. یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمارے لیے اور آپشن نہیں دیا ہے. ہم جھک مار کر یہی کام کریں، نہ کرنا چاہیں تب بھی اسی میں قائم رہیں، چاہے اسے کوئی مجبوری کہے چاہے جو کہے. اللہ اپنے دین کا نظام وہ چلائے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چلائے گا. البتہ اگر کوئی شخص عالمیت کا کورس مکمل کرنے کے بعد کسی بھی عصری علوم میں، چاہے وہ سائنس سے ہو، میتھ ہو یا انگلش ہو یا ٹیکنالوجی کے کسی بھی چھیتر میں، اگر وہ زبردست مہارت حاصل کرتا ہے تو میں اس کے مخالف نہیں ہوں، کیونکہ اب اس کے اندر جب وہ مکمل طور پر عالم دین یا مفتی بن چکا ہے تو وہ پختگی اور وہ گہرائی آ گئی ہے کہ اب اگر وہ کوئی بھی علم حاصل کرے گا اس کے باوجود بھی اپنے دین، اپنے عقیدے پر مکمل طور پہ قائم رہے گا، اور جو کچھ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت کے لیے کرے گا. جیسے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، انہوں نے عالمیت اور افتاء وغیرہ مکمل کرنے کے بعد انگریزی اور بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی ہے اور دین کا زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی.